Hello students, I am Virendra, your information technology teacher. I hope you are doing well during this lockdown period. I also guess that you are using your time in a precious manner. But you have to think about that this precious manner never comes again. It means that you have to use your time in a very good manner, right? So with this I am coming to the next slide to welcome you all on my YouTube channel. Right now this video belongs to class 11th student, and right now we are going to study information technology. Now I am going to show what we are going to study in this session, right? As you know that right now your IT subject is divided into two parts. Your part A is employability skill, your part B is IT skill. In employability skill, this is divided into 5 parts. It means 5 units. And unit 1 is communication skill. So right now we are going to study unit 1 communication skill. So this is the content, this is the sessions which you are going to cover, and earlier you are already aware about this, that session number 1 to session number 11 we have already completed it, and today we are going to study session number 12 talking about family. Okay, so let's come to the next slide. Okay students, so session number 2, the title of session number 12 is talking about family, and in this session we have to complete 3 topics. Number 1, introduction. Number 2, new words, names for relative. Number 3, new words, words to show relations, right? So 3 topics we have to cover. With this I am coming to the topic number 1, that is introduction. Are you ready guys? Okay, so let's come to the next slide. So in introduction, you all are aware that your family is very much important, right? And how the families are playing an important role in your life. You already aware about this. But if someone asks you that please tell me about your family in English, how big or how small your family is, okay, what do you say at that time? What happens if someone asks you about this? Okay, so at that time you should know about that what sentences you have to speak about in front of the person, and what kinds of word you are going to use to tell to the other person. Okay, so you are able to say these kind of sentences, these kinds of words, if you know all about it. Okay, so now I am coming to the next slide and give you more about it. So right now we are going to learn some word which help you to introduce your family members and describe the relation between you. What the relation with you and your father, okay, how are going to describe this thing by using the words. Clear? So let's come to the next slide. Okay students, so right now we are coming to the next slide, and in this slide we have to understand that what are the new words which is used for names for relatives. Okay, so topic number 2 is new words, names for relative, right? So first of all, do you know English name for different members of the family? मतलब क्या हुआ
कि फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं उनको आप कैसे बुलाएंगे, उनके लिए इंग्लिश वर्ड क्या है। आई एम गिविंग सम एग्जांपल टू यू। इन इंग्लिश, पेरेंट्स फॉर बोथ मदर एंड फादर आर कॉल्ड ग्रैंड पेरेंट्स। मतलब क्या हुआ कि आपके मम्मी पापा के जो पापा हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स कहलाएंगे। अगर हम सेपरेट करें तो फादर को कह सकते हैं ग्रैंड फादर और मदर को कहेंगे हाँ ग्रैंड मदर। क्लियर? अब बात करते हैं आगे हम सिस्टर्स ऑफ बोथ फादर एंड मदर। सिस्टर्स ऑफ बोथ फादर एंड मदर आर कॉल्ड आंट्स। मतलब क्या हुआ, आपके जो माता पिता हैं, अगर माता की बहन आंट कहलाएगी, जिसको क्या मौसी कहते हो आप, और पिता की जो बहन होगी वो भी आंट कहलाएगी, जिसको क्या बुआ कहते हो आप। ओके, नाउ लेट मी टॉक अबाउट मोर। ब्रदर्स ऑफ बोथ फादर एंड मदर कॉल्ड अंकल्स। राइट? कहने के क्या मतलब है कि अगर आपके पापा के भाई वो आपके चाचा लगेंगे यानी अंकल लगेंगे, और मामा के भाई आपके यानी कि आपकी मम्मी के जो भाई हैं वो आपके मामा लगेंगे, लेकिन इंग्लिश में उन दोनों के लिए अंकल्स कहा जाएगा। ऐसे ही मौसी और बुआ के लिए आंट कहा जाएगा। ओके, अब आगे बात करते हैं हम। चिल्ड्रन ऑफ ऑल आंट्स एंड अंकल्स आर कॉल्ड कजिन्स। आपके जितने भी बुआ हैं या आपकी चाची जी हैं या आपके मामा जी हैं या चाची जी हैं या चाचा जी हैं, जो भी हैं, उन सभी के जो बच्चे हैं, जो उनके चिल्ड्रन हैं, वो कजिन्स कहलाएंगे। ओके, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। ओके स्टूडेंट्स, सो विद दिस आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब हम आगे समझते हैं हम कि अगर मम्मी के या पापा के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए कौन कौन से शब्द हैं जिनकी हेल्प से हम उन्हें बुलाएंगे या हम उनके लिए यूज करेंगे। हम द फैमिली मेंबर्स ऑफ हस्बैंड और वाइफ आर नोन एज इन लॉज। याद रखिएगा आप, इन लॉज, कि आपके फैमिली मेंबर यानी कि अगर मैं पति की बात करूं, पति के यानी कि जो भी फैमिली मेंबर्स होंगे उनको इन लॉज के आप ये जो वर्ड है इनको ज़रूर यूज़ करेंगे। पत्नी के जो भी फैमिली मेंबर्स होंगे उनके लिए भी इन लॉज यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देते हैं आपको, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ द हस्बैंड विल बी ब्रदर्स इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ फॉर योर वाइफ। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपके पापा की बात करूं मैं, तो पापा के घर में जितने भी रिलेशंस होंगे उनके बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है। राइट? ऐसे ही मम्मी के जो रिलेशंस हैं वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। ओके, तो जो पति हैं, पति के जो भाई होंगे उनके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? आप ब्रदर इन लॉ, और सिस्टर के लिए सिस्टर इन लॉ। क्लियर है? नाउ आगे बढ़ते हैं हम। ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ वाइफ, यानी कि जब हम पति की बात कर चुके हैं अब हम पत्नी की बात करते हैं कि पति का भाई या पत्नी की बहन, ठीक है, उनको क्या कहेंगे आप? उनके लिए भी सेम ऐसे ही आपका यूज होगा ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। यानी कि अगर हम ये देखें कि पति और पत्नी के जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हम किस तरह से बुलाएंगे हम, तो उसमें आप इन लॉज का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर आप जो ब्रदर हैं उनके लिए ब्रदर इन लॉ, जो सिस्टर्स हैं उनके लिए सिस्टर इन लॉ आप यूज़ करेंगे आप। ऐसे ही अगर पत्नी के पिता की बात करें हम तो हम कहेंगे फादर इन लॉ, मदर की बात करें तो मदर इन लॉ, यानी कि मैं उनको मदर इन लॉ या फादर इन लॉ कहूँगा। ओके, अब हम बात करते हैं पति की, यानी कि अगर पत्नी है, पत्नी अपने पति के जो पिता हैं या माता हैं उनको हम क्या कहेंगे? हम
ओके, तो अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर भी फादर इन लॉ और मदर इन लॉ आएगा। पेरेंट्स ऑफ द हस्बैंड विल बी फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, राइट। तो ये कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ओके, सो विद दिस आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, टॉपिक नंबर 2 में, जिसमें कि मैंने आपको एक फैमिली ट्री के बारे में बताने की कोशिश की है। एक फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। इस फिगर की हेल्प से बहुत कुछ आप जानने की कोशिश करेंगे, जितना भी कुछ मैंने आपको बताया है, राइट। सो इस फिगर को समझने की कोशिश करते हैं हम। देखिए, शुरुआत करते हैं, बिल्कुल मिडिल में आ जाइए आप, बिल्कुल मिडिल में। ये है फादर और ये है मदर, यानी कि इनको हम बोल सकते हैं एक शब्द में कि ये मेरे पेरेंट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बिलो दे है one daughter and one son. Okay, and this is myself. I'm trying to speak all about them. So the relation between daughter and father is called sister. The relation between sister and the brother is known as daughter and son of that parents. ओके स्टूडेंट, मतलब क्या हुआ कि एक पिता है एक माता है, यानी उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो पुत्र हैं और जो पुत्री हैं, वो उनकी संतान कहलाएंगी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पिता के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी बात करेंगे और उसके बाद जो मदर हैं उनके फैमिली मेम्बर्स की बात करेंगे हम। ओके, अब हम बात करते हैं जो फादर हैं, फादर के फादर वो कहलाएंगे आपके ग्रैंड फादर, और जो उनकी मदर है वो कहलाएंगी ग्रैंड मदर। ओके, तो इनको हम बोल सकते हैं ग्रैंड पेरेंट, दोनों को मिला के एक शब्द में कह सकते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, अब जो फादर हैं, फादर के जो भाई हैं वो कहलाएंगे अंकल, और फादर के जो बहन है वो कहलाएंगे आंटी। ओके, अब हम आते हैं राइट साइड में, आते हैं हम मदर की जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी बात करते हैं। उनके जो पापा या मम्मी होंगे, यानी उनके जो ब्रदर एंड जो उनके माता और पिता होंगे वो कहलाएंगे ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, यानी कि हम उनको भी हम क्या कहेंगे, ग्रैंड मदर कहेंगे हम। उसके बाद अब हम बात करते हैं उनकी जो संतान होंगी, उनकी जो संतान है, ओके, वो भी आपकी वो इसके हिसाब से कहे जाएंगे आंट और अंकल ही कहे जाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि किस तरह से सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ को हम यूज़ करेंगे हम। अब इनके जो बच्चे हैं, जो यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट साइड में, आंट या अंकल के जो भी इनके होंगे वो कजिन्स कहलाए जाएंगे। आपका इसी तरह से राइट साइड में भी उनके जो बच्चे होंगे वो कहलाएंगे कजिन्स कहलाएंगे। ओके, और यहाँ पर ये भी आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पर आपके बच्चे हैं वो उनको कहेंगे फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हम, राइट। तो अब आपको इस फिगर में काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, और मुझे बस एक चीज़ मुझे और आपको यहाँ क्लियर करनी है, जो कि यहाँ से दिस इज मदर, okay, and this mother is having a arrow with your sister, where it is, see the right hand side and left hand side. Okay, let me show you. आप मेरे माउस पॉइंटर को देखिए, this is mother, this mother is going to connect it with the father sister, यानी कि पिता की जो बहन है वो और जो मदर है वो उनके लिए सिस्टर इन लॉ कहलाएंगी, जिसको आप नंद कहते हो आप। ओके, इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर जो फादर हैं और यहाँ पर ये फादर, इनके बीच में जो इनके यहाँ पे जो आंट है या अंकल हैं वो यहाँ पर क्या कहलाएंगे, ब्रदर इन लॉ कहलाएंगे। क्यों, ये
इनके हिसाब से हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको इस फिगर से काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा, एंड आई डेफिनेटली श्योर you are able to understand what I am trying to say. Okay students? Okay, with this I am coming to the next slide. One more thing I just want to tell you, if any student have any kind of doubt, any kind of problem, you can get in touch with me by using the YouTube comment, or you can use the WhatsApp also, right? So students, this is topic number 3, and the topic is new words that show relations. यानी कि अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से शब्द हैं जो संबंध को यानी कि रिलेशन को बताते हैं, राइट? ओके, सो इन आवर अर्लियर कंटेंट ऑफ द वीडियो डिड यू ऑब्जर्व अ फ्यू वर्ड्स लाइक फादर्स, मदर एक्सेट्रा लाइक दिस? आपने अपने पुराने जो हमारे स्लाइड्स हैं उसमें आपने देखा होगा, ओके, कुछ वर्ड हैं जैसे माई, फादर्स, मदर, डियर एक्सेट्रा. Okay, in father's sister, the word father describe the relation. यानी कि अगर मैं एक शब्द बोलूँ फादर्स सिस्टर, तो यहाँ पर जो फादर है, फादर्स है, वो क्या शो कर रहा है? एक रिलेशंस को शो कर रहा है. और जो सिस्टर है वो क्या है? एक नाउन है, राइट? तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव और पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करने वाले हैं. क्लियर? सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एडजेक्टिव एंड व्हाट इज पॉजिटिव एडजेक्टिव. ओके, तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव समझने के लिए या एडजेक्टिव समझने के लिए आपको मालूम होना चाहिए नाउन क्या होता है. आपको याद होगा द वर्ड विच इज यूज फॉर अ प्लेस, person or thing, that is called noun. But if you saying about some description about the noun or pronoun, that word is called adjective. मतलब क्या हुआ कि जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता के लिए इस्तेमाल होते हैं वो कहलाते हैं एडजेक्टिव. नाउ कम टू द पॉजिटिव एडजेक्टिव. इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप और ओनरशिप और नोन एज पॉजिटिव एडजेक्टिव. कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसे शब्द यानी ऐसे विशेषण वाले शब्द जो संबंध को बताते हैं, ओनरशिप को बताते हैं, वो कहलाएंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव. ओके, सो इट डिस्क्राइब द रिलेशन, मतलब एक ऐसा विशेषण का शब्द है जो क्या बताएगा? रिलेशन बताएगा या ओनरशिप को बताएगा. पॉजिटिव एडजेक्टिव can be used to show the relation between people and the owner of the things. ठीक है, दो चीजों के बीच पे अगर आपको रिलेशन इस्तेमाल बताना है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव का हम इस्तेमाल कर सकते हैं. क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके students, now I am going to give you some important examples here so that you can able to understand the topic here. Okay, एक वर्ड है यहाँ पर माई. ओके, अब इस वर्ड की जो मीनिंग है आपको पता होगा, बिलोंग्स टू या रिलेटेड टू में हम कह सकते हैं. और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, माई मदर इज अ टीचर. अब यहाँ पर आप मदर के बारे में बता रहे हैं कि मदर अध्यापिका हैं. ओके, दिस इज माई बुक. अब यहाँ पर माई का इस्तेमाल दो अलग तरीके से हुआ है. ओके, और दोनों में आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में बताया गया है. टीचर तो नाउन है, बुक भी नाउन है आपका, लेकिन माई का हमारा यहाँ पर बताया जा रहा है. यहाँ पर माई एक प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, लेकिन जो मदर है आपका वो शो कर रहा है, यहाँ पर एक पॉजिटिव एडजेक्टिव शो कर रहा है. ओके, इसी तरह से योर के बारे में देखते हैं. ठीक है, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर. ओके, ये कुछ एग्जाम्पल, ये कुछ वर्ड हैं, इन्हीं को यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है. जैसे योर देखो आप, वेयर इज योर सिस्टर, वेयर इज योर सिस्टर, इज दिस योर बुक. यहाँ पर देखिए सेंटेंस को पढ़ते ही आपको पॉजिटिवनेस की आपको फीलिंग आ रही है. पॉजिटिवनेस मीन्स अधिकार की यहाँ फीलिंग आ रही है, अधिकार. ओके, सो प्लीज कीप इन माइंड. हिज का देखते हैं, हिज कजिन प्लेज क्रिकेट, दिस इज हिज हाउस. ओके, कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर ये मतलब हुआ कि आप यहाँ पर,
ठीक है, इतने सारे वर्ड्स का इस्तेमाल पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए यूज कर रहे हैं आप। ओके, तो इसको आप याद रखिएगा, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर और देयर। ओके, एक लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर, पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। ठीक है, देयर चिल्ड्रन में पॉजिटिवनेस आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर हम पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ यूज कर रहे हैं। देयर क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। एक और एग्जांपल, वी विजिटेड देयर हाउस, कि हम उनके घर पे विजिट किए। ओके स्टूडेंट्स, आवर का देख लेते हैं, आवर ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन शिमला, वी लव आवर स्कूल। ओके, तो यहाँ पर आवर शब्द क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है यहाँ पर। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। बट इफ यू फील दैट यू आर स्टिल हैव सम काइंड ऑफ डाउट, प्लीज कम टू मी, राइट? प्लीज गेट इन टच विथ मी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम समझेंगे अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल, समझेंगे हम कि अपोस्ट्रोफी का क्या इस्तेमाल है। ओके, अपोस्ट्रोफी एस करके जो लिखते हैं हम, उसका क्या इस्तेमाल है। वी कैन ऑल्सो यूज द साइन अपोस्ट्रोफी विथ एस। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अपोस्ट्रोफी एस यूज करना है। ये भी हमें ओनर या रिलेशनशिप शो करता है, ओनरशिप और रिलेशनशिप भी हमें शो करता है, राइट? देखते हैं, फादर्स, ठीक है, ये एक वर्ड है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, माई फादर सिस्टर्स लव्स अस। ठीक है, मेरे पिता की जो बहन है वो हमसे प्यार करती है। माई फादर्स कार इज रेड इन कलर, राइट? ऐसे ही मदर का देखिए, माई मदर्स मदर इज माई ग्रैंड मदर। मेरी मम्मी की मम्मी मेरी ग्रैंड मदर है। ओके, यानी कि दादी है। ओके, माई मदर्स वर्क नेवर एंड। ऐसे रवि का देखिए, रविज सिस्टर इज माई फ्रेंड, रविज हाउस इज फॉर अवे। ओवरऑल आप यहाँ पे ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस एडजेक्टिव के बाद, ठीक है, या जिस नाउन के बाद आप अपोस्ट कॉमा और अपोस्ट्रोफी यूज कर रहे हैं आप, उसके बाद एस लगा रहे हैं, वहाँ पर आप एक ओनरशिप और रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं आप। ओके, सो स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर नाउ? विद दिस आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now students, this question belongs to you. Now I have already given the basics of the word which shows the relation, okay, among the parents, among the family members. But now we have to take care about how do you describe your family. अब इतना सीखने के बाद कैसे डिस्क्राइब करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, now I am going to next slide. Okay students, now it's time to have some examples here, and in that example you are able to see some other videos. In that videos you are able to understand much more better, right? So please come to our desktop. Okay students, so please watch this video. I'm going to play for you. Hello, today we are going to have a conversation about our families. Let's start. How many people are there in your family? How many people are there in your family? There are 5 people in my family. There are 5 people in my family. Who are they? Who are they? They are my parents, my sister, my brother and myself. They are my parents, my sister, my brother and myself. Do you get on well?
with all of your family members? Do you get on well with all of your family members? I get on really well with all of them. I get on really well with all of them. Yesterday I had an argument with my sister, but we are cool now. Yesterday I had an argument with my sister, but we are cool now. Do you get on well with all of your family members? I get on really well with all of them. I love them. I love them. Friends may run away, but my family never left me. Friends may run away, but my family never left me. Do you prefer spending time with your family or friends? Do you prefer spending time with your family or friends? Both are very important. Both are very important. The family has a stronger bond, but you can share some things with your friends that you can't share with your family. The family has a stronger bond, but you can share some things with your friends that you can't share with your family. Do you ever get tired of family duties? Do you ever get tired of family duties? No, I don't. They are my family after all, right? No, I don't. They are my family after all, right? Do your parents trust you? Do your parents trust you? Of course they do. Why wouldn't they? Why did you ask that? Of course they do. Why wouldn't they? Why did you ask that? Never mind. It wasn't important anyways. Never mind. It wasn't important anyways. Would you like to have your own family? Would you like to have your own family? This is a hard question to answer right now. Ask me the same question 5 years later, and I'm sure I'll have an answer for you. This is a hard question to answer right now. Ask me the same question 5 years later, and I'm sure I'll have an answer for you. How important is your family to you? How important is your family to you? Family is the most important thing in this life. Don't you ever forget that, Dwight. Family is the most important thing in this life. Don't you ever forget that, Dwight. Okay students, now the first video ends and I'm damn sure that you are able to understand each and everything. So I'm going to play one more video that is very small video for you, and this is for best understanding about the current running topic. Okay students, so I'm going to play for you. Please watch it very carefully.
In this video, we will learn how to talk about family. First, let's review the vocabulary by looking at a family tree. Hi, my name's Rick. Let me tell you about my family. I'm married. This is my wife. I am her husband. We have 2 children, 1 son and 1 daughter. I have an older brother. His wife is my sister-in-law. They also have 1 son and 1 daughter. Their son is my nephew and their daughter is my niece. Then there's my mother and father. At the top of the family tree, there's my grandmother and grandfather. Now let's review some of the questions we can ask about family and the answers we might hear. How many brothers and sisters do you have? I have 2 sisters. How many brothers and sisters does Jason have? He's an only child. Do you have any siblings? Yes, I do. I have 2 brothers. Does she have any siblings? No, she doesn't. She's an only child. Tell me about your family. I come from a big family. I have a baby sister and an older brother. Tell me about her family. She comes from a small family. She has 1 younger brother. Are you married? Yes, I am. Do you have any children? Yes, I do. I have a son and a daughter. Is he married? No, he isn't. He's single. Okay students, now the video is finished and I hope you are able to enjoy the video very carefully. Now I am going to come with a new slide. So students, in this video you are able to complete 2 topics. Number 1, how you are going to describe your family with the use of words and sentences you are able to know, and you are going to have some possessive adjective to talk with other person to describe your family. These 2 topics we have already completed, right student? Let's come to the next slide. Okay students, so now it's time to came to end our video. So thanks a lot for watching this. We'll meet in next video, but please don't forget to subscribe my channel, and if you have any kind of feedback, please give it to me. So thank you so much. Thanks for watching.